طریقہ ہے جو وفاقی حکومت نے ایک پالیسی اپنائی ہوئی ہے جو بالکل غلط پالیسی ہے، خیبر پختونخوا حکومت اپنے آپ کو اس پالیسی سے دور کرے، اور یہ پالیسی جنگ و جدل کی پالیسی ہے۔ اس تمام عرصے میں خان صاحب نے کہا کہ ہم نے بار بار یہ کہا ہے کہ 3 اسٹیک ہولڈر ہیں، جب تک ان کو شامل نہیں کیا جائے گا خیبر پختونخوا اور پورے پاکستان میں امن نہیں ہوگا، اور یہ 3 اسٹیک ہولڈر ہمارے قبائل ہیں جو ایکس فاٹا کے علاقے ہیں، وہاں کے بسنے والے لوگ ہیں، افغان حکومت ہے اور افغان عوام ہے۔ ہم نے جس طریقے سے افغان مہاجرین کو پاکستان بدر کیا، بے عزتی کی ان کی، اس سے ہم نے ایک ایسی نفرت بوئی ہے جس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ 40 سال ہم نے میزبانی کی، اور اس کے بعد ہم نے ایک ایسی حرکت کی جو خان صاحب کی نظر میں ناقابل معافی ہے۔ اسی طرح جو حکومت وہاں قائم ہوئی ہے اس سے ہم نے کوئی تعلق نہیں رکھا۔ خان صاحب نے یاد دلایا کہ بلاول بھٹو سوا سال وزیر خارجہ رہے، اور یہ انتہائی اہم دور تھا، ایک دفعہ بھی وہ کابل نہیں گئے۔ اسی طرح جو وہاں کی حکومت ہے ان سے کوئی رابطہ نہیں رکھا گیا۔ خان صاحب نے اپنے دور حکومت میں 3.5 سال میں یاد دلایا کہ دہشت گردی تاریخ کی کم ترین سطح پہ تھی، اس ملک میں وہ حملے نہیں ہو رہے تھے جو آج ہو رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اشرف غنی حکومت کے ساتھ ایک تعلق پیدا کیا، خود وہاں گئے، کابل گئے، اشرف غنی کو یہاں بلایا، اور اشرف غنی حکومت یاد رہے ایک پاکستان مخالف حکومت تھی جو را کے ساتھ مل کر کام کرتی تھی، لیکن اس کے باوجود اپنی پالیسی کی وجہ سے، حکمت عملی کی وجہ سے ہم نے اس ملک میں دہشت گردی نہیں ہونے دی۔ تو خان صاحب کو انتہائی افسوس ہے، دکھ ہے کہ ان کے ویژن پر عمل نہیں ہوا، اور خیبر پختونخوا حکومت اس طرح اپنے آپ کو وفاقی حکومت کی اور ایجنسیوں کی پالیسی سے دور نہیں کر سکی جیسا کہ ضروری تھا۔ یہ ایک ناقابل اندیش پالیسی ہے کہ بم مارو، گولہ مارو، ڈرون چلاؤ، یہ ایک ایسا ایک گرداب ہے، ایک سائیکل ہے کہ آج ہماری شہادتیں ہوئی ہیں، ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں، اس کا ایک رد عمل یقیناً ہماری فورسز کی جانب سے آئے گا، اس کے نتیجے میں یہ عمل چلتا جائے گا، وہاں سے پھر کوئی رد عمل آئے گا۔ تو ایک ہی طریقہ ہے اس دہشت گردی کو ختم کرنے کا کہ ہم بیٹھیں اور اس معاملے کو اس کے بڑے تناظر میں دیکھیں، اس کو حل کریں، اور نئی جو اب حکومت قائم ہوگی خیبر پختونخوا میں، سہیل آفریدی صاحب وزیر اعلیٰ ہوں گے، خان صاحب کی توقع ہے کہ ایک نئی شروعات ہوگی، اور ایک عقل کی بات ہوگی، افہام و تفہیم کی بات ہوگی، معاملات کو سمجھنے کی بات ہوگی، جو جرگے ہیں وہاں پہ، جو قبائل ہیں، ان سے معاونت حاصل کی جائے گی، اور اس معاملے کو ایک دیرپا حل جو ہے وہ مہیا کیا جائے گا۔ تو یہ خان صاحب کا سوچا سمجھا فیصلہ ہے، لیکن اس کا جو محرک آج واقعہ ہوا وہ اس معاملے کا محرک ہے۔ جو شہادتیں آج ہوئیں انہوں نے خان صاحب کو انتہائی مغموم کیا ہے، انہوں نے تمام شہیدوں کی ان کے درجات کی بلندی کی دعا کی ہے، اپنے غم کا اظہار کیا ہے، اور اس عزم کا تہیہ کیا ہے، اعلان کیا ہے کہ آئندہ ہم بہتر پالیسی اپنا سکیں گے وفاقی حکومت کی سطح پہ، اور صوبائی حکومت جو ہے وہ وفاقی حکومت کی رہنمائی کر سکے گی اس حوالے سے۔ تو اب خان صاحب کی یہ توقع ہے، خان صاحب کا یہ حکم ہے کہ سہیل آفریدی صاحب وفاقی حکومت کی رہنمائی کریں، ان کو سمجھائیں کہ پختون روایات کیا ہیں، اس علاقے میں امن کس طرح قائم ہو سکتا ہے، اور خان صاحب کے ویژن پر عمل کریں۔ سلمان صاحب یہ الزام ہے کہ وہ آلریڈی طالبان نواز ہے اور وہ طالبان کا سہولت کار بھی رہا ہے، تو پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کے خلاف جو ہے وہ FIA سائبر کرائم میں فروری 2024 میں ایک کیس بھی ہے، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ سلمان اکرم رجا صاحب، اس سے بھی ایک سوال لے لیں کہ جو موجودہ KPK کی صورتحال ہے بڑی نازک صورتحال ہے، ایسے میں KPK وزیر اعلیٰ کو تبدیل کر کے نیا وزیر اعلیٰ لگائیں گے تو صورتحال کے اوپر منفی اثرات نہیں پڑیں گے؟ نہیں، کوئی منفی اثرات نہیں پڑیں گے۔ دیکھیں، یہ ایک بالکل لغو الزام ہے کہ وہ طالبان نواز ہیں۔ خان صاحب یہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے لوگوں کے جان اور مال کی حفاظت کرنی ہے، وہ کیسے ہوگی؟ وہ ایسے نہیں ہوگی کہ ایک ڈرون حملہ آپ ان پہ کریں، وہ پھر آپ کے اوپر حملے کریں، دہشت گردی کریں۔ یہ عمل تو ہو چکا نا، 21-22 ملٹری آپریشن آپ کر چکے ہیں پچھلے 10-12 سال میں، کوئی نتیجہ نہیں۔ ہر چند مہینوں کے بعد اعلان ہوتا ہے کہ یہ علاقہ اب دہشت گردی سے پاک ہو گیا، اور اس کے چند دنوں کے بعد وہاں پھر ایک اور واقعہ ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں بیٹھ کر بحیثیت قوم سوچنا ہوگا کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے۔ افغانستان کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو ہم اپنے سے دور کر سکیں، وہ ہمارے پڑوسی ہیں، ایک تمدن ہے یہاں پہ، ایک کلچر ہے، یہاں کی روایات ہیں، یہاں کی سوچ ہے، اس سب کو جب تک آپ ساتھ لے کر نہیں چلیں گے کوئی دیر پا حل ممکن نہیں ہوگا۔ سلمان صاحب یہ بتائے گا سر، FIA میں ان کے خلاف کیس ہے، وہ کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے گا لیگلی؟ اگر بتا دیں FIA میں
2025 में नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। सलमान साहब ये बताएं, सलमान साहब साइफर वाला मुकदमा पहले ही ढेर हो चुका है, उसका इस मामले से कोई ताल्लुक। सलमान साहब ये बताइएगा कि दहशतगर्दी तो एक मसला है ना मुल्क के लिए, और ये सिर्फ केपी में नहीं हो रहा, बलोचिस्तान में भी हो रहा है, दीगर जगहों पे भी हो रहा है। हर जगह, और अफगान पूरा सवाल है, पॉलिसी अफगानिस्तान से दहशतगर्दी तो हो रही है और इससे मुतल्लिक कौमी सतह पे पॉलिसीज बन रही है। अब आपका नया वज़ीर आला आ गया, उसने भी जाहिर है वफाकी हुकूमत से कंप्रोमाइज़ करना है या कोऑपरेट करना है या कोऑर्डिनेट करना है, तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा वज़ीर आला हटाने से? देखें एक तासुर पैदा हो गया था कि हमारी जो सूबाई हुकूमत है वो गलत वफाकी पॉलिसियों की मददगार है। तो सुहेल आफरीदी साहब से अब ये तकाजा है, खान साहब की ये तवक्को है कि वो अपने आप को दूर रखेंगे और वो बिल्कुल वाशगाफ अल्फाज में कहेंगे कि हम वफाकी हुकूमत की पॉलिसियों की हिमायत नहीं करते। ये इंतहाई अहम बात है और वफाकी हुकूमत की रहनुमाई भी करेगी। अगर वो नहीं कर सके उनको भी हटाएंगे? हमें बिल्कुल ये तवक्को है कि ऐसा नहीं होगा और एक नई शुरुआत की ज़रूरत है। और इमरान खान साहब ने अली अमीन साहब के लिए भी एक पार्टी में ऑलरेडी ग्रुपिंग है, इससे मजीद ग्रुपिंग नहीं होगी। इस फैसले के ऊपर अमल दरामद कैसे होगा? वहाँ और जमातें भी बैठी हुई हैं, मौलाना फजलुर रहमान है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग, अदम एतमाद में कोई नया वज़ीर आला सामने आ गया तो क्या करेंगे? अदम एतमाद नहीं होगा। अली अमीन साहब को खान साहब ने हुक्म दिया है कि वो इस्तीफ़ा दें और हमारी वहाँ पे वाज़ेह अक्सरियत है खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में। उस अक्सरियत की बुनियाद पे सुहेल आफरीदी साहब को वज़ीर आला मुंतखब किया जाएगा, इसलिए कोई दिक्कत मुझे नज़र नहीं आती। तो आप समझते हैं कि अली अमीर को जो है वो सजा दी जा रही है कि उन्होंने हलीमा खानम के बारे में इमरान खान को ब्रीफ किया था? ऐसी बात नहीं है। देखें आज इमरान खान साहब ने अली अमीन साहब के हवाले से भी नेक जज्बात का इजहार किया। वो समझते हैं कि अली अमीन साहब के लिए भी अच्छा है कि वो अब इस ओहदे को छोड़ें और उस सियासत का हिस्सा बने जो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की सियासत है। सलमान अकरम राजा साहब ये बताइएगा कि पाकिस्तान की फौज जो है वो आज सिर्फ कुर्बानियाँ नहीं हुई, रोज़ाना की बुनियाद पर कुर्बानियाँ दे रही है इस मुल्क की हिफाजत के लिए। पाकिस्तान की सिविलियन जो लोग हैं उनका खून बहाया जा रहा है दहशतगर्दों की वजह। क्या आप ये चाहते हैं कि उन दहशतगर्दों से जो पाकिस्तान के अवाम के कातिल हैं, फौज के शोधा के जिम्मेदार हैं, उनके साथ मुज़ाकरात किए गए? क्या एक मिनट मेरी बात सुनिए, क्या उनके साथ मुज़ाकरात से आप मसला करना चाहते हैं? और वो अफगान महाजरीन जो रवां साल की दहशतगर्दी है 70% उसमें मुलव्वस हैं अफगान शहरी, क्या उनको वापस भिजवाने के आप खिलाफ हैं? नहीं, ये गलत। देखिए एक तरीका होता है किसी को वापस भिजवाने का और ये मामला आपको करना है अफगान हुकूमत के साथ, ये मामला आपको करना है अफगान अवाम के साथ। मैंने पहले अर्ज़ किया कि 3 स्टेक होल्डर खान साहब ने, इमरान खान साहब ने आइडेंटिफाई किए हैं। इन इलाकों के हमारे जो कबाइल हैं एक्स फाटा के, जो अफगान अवाम है और अफगान हुकूमत। तो अगर आप यहाँ मामला तय कर लेते हैं तो जो इल्ज़ाम है और उसमें हकीकत भी है कि बड़ी हद तक ये दहशतगर्दी वो लोग करते हैं जो 2500 किलोमीटर का हमारा बॉर्डर है अफ़गानिस्तान के साथ, उसको अबूर करके आते हैं। तो यहाँ बैठे हुए लोग नहीं करते, ये खुद आपकी वफाकी हुकूमत का ये इल्ज़ाम है कि वहाँ से लोग यहाँ आते हैं और आप अफ़गान हुकूमत को मुवर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं। तो ज़रूरी ये है कि आप अफ़गान हुकूमत से कोई मामला करें। जब तक ये मामला नहीं होगा, जब तक ये गुफ्तगू नहीं होगी, दहशतगर्दी नहीं रुक सकती। हमने यकीनन शहादतें पेश की हैं, हमारे गयूर अवाम ने शहादतें पेश की हैं, हमारे जवानों ने, हमारे अफसरों ने, हमारे सिपाहियों ने शहादतें पेश की हैं और हमें फ़ख्र है और हम उनकी दर्जात की बुलंदी की दुआ करते हैं। लेकिन हल मामले का मुस्तकिल हल तभी होगा जब आप सलमान अकरम राजा साहब, पहले हर मंगल को यहाँ पर अवामी असेंबली लगाने का फैसला हुआ था, लेकिन अब देखा जाता है कि जो पार्लियामेंटेरियन है, सूबाई असम्बलियों के मेंबरान हैं, उनकी अदम शिरकत है, दिलचस्पी नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। एक सवाल इसके साथ ये भी ले लें कि इतना बड़ा बानी पीटीआई की ने फैसला कर लिया, इसके ऊपर अमल दरामद कैसे होगा? क्या पार्टी के दीगर बहुत आसानी से होगा, वो अमन आ जाएगा? देखिए हमने एक नई शुरुआत करनी है, अपनी पॉलिसी का ऐलान करना है। ये खान साहब का इजहार है एक नई शुरुआत का। हम समझते हैं कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा में हमने एक वाज़ेह पॉलिसी देनी है। पहले कुछ इबहम शायद पैदा हो गया था लोगों के जहनों में, उस इबहम को दूर करने के लिए एक नया वज़ीर आला जो है वो खान साहब ने मुकर्रर किया है और इसमें कोई दुश्वारी नहीं होगी। अली अमीन साहब इस्तीफ़ा देंगे और सूबाई असम्बली सुहेल आफरीदी। सलमान अकरम राजा साहब, अली पहले फैसला था सीएम बनाने का, वो गलत फैसला था? देखिए ऐसी बात नहीं है, ये वक्त के साथ साथ फैसले बदलते हैं, हुकूमतें बदलती हैं, कोई ज़रूरी नहीं होता कि एक ही शख्स जो है वो बैठा रहे। खान साहब तो हमेशा कहते हैं कि सूरत हाल
को देखकर खिलाड़ी का इंतखाब होता है। सलमान अकरम राजा साहब, पहले अलीमा खान की जानिब से यहाँ पे बयान दिया जाता था इमरान खान के, तो अब अलीमा खान का वो किरदार होगा या नहीं? इमरान खान ने उनको क्या बयान देने से रोक दिया है? देखिए नौरीन आपा बयान देंगी, खान साहब की जो बात है वो पेश करेंगी। आज भी आपने देखा कि अलीमा बीबी को गिरफ्तार करने अडयाला जेल के गेट पे पुलिस खड़ी थी, उनके खिलाफ बहुत से मुकदमे बना दिए गए हैं, तमाम झूठे हैं लेकिन बहरहाल हैं। तो अलीमा बीबी को हम ये समझते हैं, खान साहब ये समझते हैं कि उनके ऊपर अब जो फोकस है उसके पेश नज़र नौरीन आपा अगर बात करें तो बेहतर होगा। सलमान साहब ये बताइएगा कि दहशतगर्दों से मुज़ाकरात की तरफ तो आप जाते हैं, आप बात करते नहीं, हैं, हमने अफगान हुकूमत से मुज़ाकरात की बात की है। आप कहते हैं कि मुज़ाकरात से दूसरी अफगान हुकूमत से मुज़ाकरात किए तो जाएं। आप जो पाकिस्तान की हुकूमत है उससे मुज़ाकरात क्यों नहीं करते? सियासी मसाइल का हल भी मुज़ाकरात, उसमें क्या बात है? देखिए हमने कब कहा है, हमने हमेशा ये कहा है कि आइन और कानून की बहाली के लिए, शराफत की बहाली के लिए हम बात करने को तैयार हैं। आप जानते हैं दिसंबर 2024 और जनवरी 2025 में हम बैठे थे इस मसनूई हुकूमत के साथ, इस फॉर्म 47 हुकूमत के साथ, तमाम पार्टियां वहाँ मौजूद थी, पीपल्स पार्टी, MQM सब थे, और उन्होंने हमें ये कहा, जब हमने कहा कि हमें खान साहब से अडयाला जेल में मिलने दो, अडयाला पंजाब में है, इन्हीं की हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम है, हमें जवाब मिला कि पूछ कर बताएंगे कि आपको अडयाला मिलने की इजाज़त दे सकते हैं, और फिर कहा हमने बड़ी कोशिश की लेकिन हमें इजाज़त नहीं मिली। तो एक मजबूर महज हुकूमत है ये, इसीलिए खान साहब ये कहते हैं कि जो ताकत इस निज़ाम पर हावी है वो हमसे बात करे, हम उस ताकत को चाहते हैं कि वह इस निज़ाम पर हावी ना रहे। सलमान साहब ये बताइएगा, क्या आप समझते हैं कि अली अमीन इतनी आसानी से इस्तीफ़ा दे देंगे, और अगर वो इस्तीफ़ा नहीं देते तो फिर आप क्या करेंगे? क्योंकि उनके पास नहीं, ये आपका मफरूज़ है। नहीं, कोई ये आपका मफरूज़ा है। अली अमीन साहब पार्टी के वफादार हैं, खान साहब ने उनके लिए नेक जज्बात का इजहार किया है, कोई वजह नहीं है कि अली अमीन साहब खान साहब के हुक्म को ना माने। सर ये बताइएगा कि गुज़िश्ता हफ्ते जो है फराज मुगल उनके तर्जमान है वो यहाँ आए हुए थे, अली अमीन साहब, तो उन्होंने कहा कि अभी अली अमीन ने साजिश नहीं शुरू की, अगर उन्होंने साजिश शुरू की तो कोई नहीं बचेगा, तो क्या आप समझते हैं वो इस्तीफ़ा देंगे या कोई साजिश नहीं करेंगे? KP में गुज़िश्ता दिनों एक गिरफ्तारी भी हुई है, तो ये भी सवालात उठाए जा रहे थे कि अली अमीन जानबूझकर गिरफ्तारियां करवा रहे हैं। तो नहीं, मैं ये बात नहीं मानता, मैं बिल्कुल नहीं समझता कि कोई साजिश होगी या अली अमीन साहब किसी साजिश का हिस्सा बनेंगे। वो पार्टी के वफादार मेंबर हैं, वफादार रुकन हैं, वो रहेंगे, उनकी ताज़ीम और इज़्ज़त अपनी जगह रहेगी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।